जय श्री राम। जय माता सरस्वती। मेधा देवी सरस्वती वंदना शतक। ज्ञान धरो। Look at the image of Mata Saraswati in such a way that it is imprinted in your mind. When you close your eyes, you should be able to recall the image. Now we will read one more poem from the Saraswati Vandana Shatak, compiled by Sri Mayaram Patangji. The name of the this is over, I think. Now the name of the poet is Deen Dayal Dinesh. This is the 23rd one. हे वीणा वादिनी तेरा शत शत अभिनंदन, रागमयी अनुरागमयी संताप निकंदन। कष्टों को हराने वाली, बुद्धि प्रकाशक तिमिर विनाशक, संशय त्रासक। संशयों को डराने वाली। अच्छा, संशयों को। बुद्धि प्रकाशक तिमिर विनाशक संशय त्रासक। That means one who will help you transcend all doubts. That means you will get over all your doubts. सद्गुण चेता, सद्गुण चेता सत्य प्रणेता तव पद वंदन। अज्ञानपथी खल दंभरथी, अघरा अघरा शीघ्र थी। जड़मती फणिगति वेद विहित रतिसुत माँ क्रंदन। हाँ, भाषा बहुत भारी है। पथ विचलित मैं महारंक महारंक, तू अवढ़र दानी अवढ़र दानी। हे कल्याणी तेरी जय, तू पाप निकंदन। तेरी करुणा प्रदत्त पुष्पों की यह माला, भूली बिसरी यादें करता तुझे समर्पण। दंभ नहीं मातु समर्पण का मात्र लिपिक हूं, तेरी वाणी तेरी भाषा तुझको अर्पण। तो अब आपको ये नीचे वर्ड्स का मीनिंग दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घमंड के रथ पर सवार हैं जो पापों को ढेर से दबे हैं, पापों के ढेर से दबे हैं। सर्प के समान टेढ़ी चाल वाले, विलाप महाकंगाल तुरंत देने वाली। हाँ, इतने सारे शब्द हैं। देखिए कितना भारी हिंदी है, कितना शुद्ध भाषा है। हमें कब पढ़ाया गया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हे वीणा वादिनी तेरा शत शत अभिनंदन, रागमयी अनुरागमयी संताप निकंदन। ठीक है, कष्ट को हराने वाले। बुद्धि प्रकाशक तिमिर विनाशक, संशय त्रासक। सो संशयों को हटाने वाले। सद्गुण चेता, सद्गुण चेता मतलब जागृत करने वाली। सत्य प्रणेता, आगे ले जाने वाली। तव पद वंदन, आहा। अज्ञानपति खल दंभरथी, घमंड के रथ पर सवार हैं। अज्ञानपति, अज्ञान के पथ पर जा रहे हैं। खल दंभरथी, हाँ, इसके रथ पे ऊपर बैठे हुए हैं। अघरा शीघ्र थी, जो पापों के ढेर से दबे हैं। अघ अघ, अनघ मीन्स सिनलेस। अघा, Krishna addresses Arjuna as Anagha. Anagha means one who is sinless, who has not done any papam. Sin is a dumb Christian word, by the way. Unfortunately, I am using the word. In English, sin is actually a Christian concept, disobedience of God's word. In the Bible and the Quran, you have this God who tells Adam not to eat the fruit of a tree, the tree of knowledge. Adam doesn't eat, but when Eve is created, Eve is tempted by the serpent, who is Shaitan or Satan. And Eve gets tempted by Satan, and Eve tells Adam, nobody is looking, let us eat the fruit of the tree of knowledge. Adam eats the fruit of the tree of knowledge, and everyone gets kicked out. That is called the fall of man, which is called sin. And every human being is affected by this, and therefore every human being is a born sinner. The crime committed by Adam was disobedience of God, which is not listening to the
command. That is, he ate the fruit of the tree of knowledge. Why should we not eat the fruit of tree of knowledge? I think we should not eat the fruit of the tree of ignorance. Anyway, that is sin. In Hinduism, we don't have this irrational idea of sin. We have papam. Papam means any act that causes bad reactions, because when you cause suffering to others, you will have to pay. Repercussions cannot be escaped. So this is a concept that applies to everybody, which is a concept which is simple, rational, morally sound. So the Abrahamic religions are based on this weird idea. So here the word is agarashigrathi. Agarashigrathi. See, what a wonderful word. agarashigrathi. मतलब इसमें फंसे हुए हैं, जो पापों के ढेर में दबे हैं. जड़मती, फणिगति. जड़मती, सर्प के समान टेढ़ी चाल चलने वाले. जड़मती, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है. फणिगति मतलब सांप के जैसा चल रहा है, केकड़े के जैसा चल रहा है. वेद विहित रतिसुत मां क्रंदन. विलाप. पथ विचलित मैं महारंक. महारंक बड़ा भिखारी. तू अवढ़र दानी. हे कल्याणी तेरी जय, तू पाप निकंदन तेरी करुणा प्रदत्त पुष्पों की यह माला. भूली बिसरी यादें करता तुझे समर्पण. दम्भ नहीं मातु, समर्पण का मात्र लिपिक हूं. तेरी वाणी तेरी भाषा तुझको अर्पण. आहा, कितनी बढ़िया सुंदर कविता है. भाषा देखो कितना शुद्ध है, गंगा जल का समान है. गंगोत्री, गोमुख के पास जो गंगा का पानी मिलता है ना, उसके समान है ये कविता. ये पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना कि लॉर्ड गिव अस माय डेली ब्रेड. ब्रेड के भिखारी मत बनाओ बच्चों को. फालतू पोयम सिखा रहे स्कूल में. जय श्री राम.